This is problem session of dynamics of soil tillage. We have some gate problems. A tractor drawn 5 times sweep type cultivator is set at an angle of 45 degree, load angle 45 degree with the soil surface during its operation. So this is soil surface and tool is making angle 45 degree from the soil surface and moving in this direction. Tillage operation is taking place. The sweep of each tine experiences a normal force of 960 न्यूटन. तो एक स्वीप पर जो है ना, जो टाइन से कनेक्टेड है उस पर नॉर्मल फोर्स 960 न्यूटन का लग रहा है. तो सॉइल इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ टूल इन दिस डायरेक्शन. टूल इज एडवांसिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस पर नॉर्मल फोर्स जो है ना ऐसे एक्ट कर रहा है. सॉइल जो है ना ऐसे स्लाइड करेगा 45 डिग्री के एंगल पर. तो फ्रिक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग ऑफ सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द टूल म्यू प्राइम इन एक्ट होंगे 45 degree angle. If the coefficient of soil metal friction is 0.3, the total draft requirement of the cultivator is. तो कल्टीवेटर 5 टाइन का है, तो हर टाइन में ड्राफ्ट की कितना रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर लीजिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. टोटल ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट द कल्टीवेटर अंडर गिवन कंडीशंस. इट So this is very simple. This angle is 45 degree, right? Load angle. And this is also delta 45 degree. We have to calculate draft. Draft is provided by tractor in the direction of motion of the tool. So D is equal to mu prime in cos delta. Take the component of friction force opposite to the direction of draft and also take the component of normal force opposite to the direction of draft. So this is 90 degree minus plus in cos 90 degree minus. Everything is given. We can easily calculate draft requirement for one tine. The total draft requirement to draw this cultivator which is having 5 tines, 5 into 1 की रिक्वायरमेंट आ गया न्यूटन में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया. Second question, a subsoiler operating at 400 mm depth requires 15 kilowatt peak drawbar power at 3 km per hour speed. So drawbar power given, speed given, from this we can calculate draft. It drawbar power speed. Drawbar power is equal to draft into speed. Drawbar power in watt. Draft speed in meter per second. This is total draft, right? This is component of soil reaction force on tillage tool opposite to the direction of motion, and equal amount of force is required in the direction of motion to pull the implement, right? तो ये ड्राफ्ट ही है. ड्राफ्ट का डेफिनेशन क्या है? ट्रैक्टर के द्वारा जो पुल प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लाइन ऑफ मोशन के अलोंग कंपोनेंट क्या है. तो वो कंपोनेंट कितनी होनी चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सॉइल के द्वारा जो रिएक्शन है उसका कंपोनेंट कितना है. इट तो ड्राफ्ट इज कंपोनेंट ऑफ पुल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू सॉइल रिएक्शन ऑन टूल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो टिलेज टूल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. नेट फोर्स 0 हो जाएगी. रिएक्शन and applied force by tractor, reaction by soil, right? The resultant soil resistance acts horizontally at a vertical distance of 450 mm from the main frame.
तो डायग्राम है अपने पास, इसे देख लीजिए। दिस इज मेन फ्रेम एंड हियर वी हैव टिलेज टूल परफॉर्मिंग टिलेज ऑपरेशन and soil reaction which is equal to draft acts horizontally at some distance from the main frame। वो डिस्टेंस आपका कितना दिया है 450, तो एज की वैल्यू 450 है, राइट। यहाँ पर एक्ट हो रही। द स्टैंडर्ड हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विथ width to thickness ratio of 4:1, width to thickness ratio 4:1 दिया, and it's failed due to bending if the allowable bending stress, allowable permissible shape working design सब सेम है 90 न्यूटन पर mm square। The width of the standard in mm will be, we have to calculate this b, right। So first we define rectangular cross section in proper way। Dear students, this is width and this is thickness, right। Due to this soil reaction force which is equal to draft, bending in the standard, this is a standard, bending in the standard is taking place, right। So maximum bending moment is acting in the standard in this cross section d into h, maximum bending moment। So this cross section is weakest and its value is d into, already we have calculated d and h is given, so we can calculate maximum bending moment in the cross section at h height above this horizontal soil reaction, right। यहाँ से from this horizontal soil reaction इस वाले क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नाउ वी ब्रिंग दिस क्रॉस सेक्शन। अब ये जो है ना क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग कैसे हो रही है, फाइंड प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो ये फोर्स जो है ना ऐसे बेंड करेगा, ऐसे, दिस इज द प्लेन ऑफ बेंडिंग, प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो दिस बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग कपल है, बेंडिंग कपल lies in the plane of this distal board and this is axis about which bending couple is acting। So guys, in bending equation we need neutral axis, and neutral axis is defined as axis about which bending is taking place। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है किसको कट कर रहा है, विड्थ को कट कर रहा है, विड्थ, विड्थ ज्यादा है थिकनेस कम है, राइट। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, किसको कट कर रहा है, विड्थ को, एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। जिसको कट कर रहा है उसका हम क्यूब लेते हैं, dv क्यूब अपॉन 12 टू कैलकुलेट करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। हमें वाई मैक्स की जरूरत होती है, वो फाइबर जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर हो न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये वाला जो फाइबर है न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, दिस इज वाई मैक्स एंड इट इज इक्वल टू b/2। नाउ ब्रिंग बेंडिंग इक्वेशन, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस induced in fiber which is experiencing maximum bending moment, तो इसी में, और जो न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट सब हो गए, राइट। तो क्या लिखेंगे आप, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, अपॉन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होती है वो भी कैलकुलेट कर लिया है, वाई मैक्स आपको करना है वो भी कैलकुलेट हो गया। सो द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड in the fiber which is at
डिस्टेंस b/2 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अब इसकी वैल्यू अलाउएबल से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सिग्मा अलाउएबल। सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है ना, राइट। अब जो है ना ये बी को इजिली कैलकुलेट कर लें, डी को भी बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज b/d विड्थ अपॉन थिकनेस इज इक्वल टू 4 गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट। तो डी कितना हो जाएगा, b/4। तो जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के टर्म में आ गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा जाएगी और बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने जो मशीन डिजाइन में स्ट्रेस का उतना डिटेल स्टडी किया था, उसकी हेल्प से इजीली इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अ इंक्लाइंड ब्लेड कटिंग टूल ऑफ 250 mm width is operating at 200 mm cutting depth। तो कटिंग जो टूल का विड्थ है, ये कटिंग टूल का विड्थ ये वाला बी, वो मुझे पता है 250 mm। कितने डेप्थ में ऑपरेट हो रहा है वो डेप्थ मुझे पता है। कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल मेटर फ्रिक्शन आर द नॉर्मल लोड ऑन द टूल एन नॉट 1000 न्यूटन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3। द सॉइल कटिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कटिंग एज, लेंथ ऑफ कटिंग एज हमारा क्या है, बी है। तो द वैल्यू ऑफ के कटिंग रेसिस्टेंस फोर्स ऑन द टूल पर यूनिट विड्थ ऑफ द टूल इज गिवन। तो टोटल रेसिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज के, न्यूटन पर एमएम है, तो कितना टोटल विड्थ है, विड्थ से मल्टीप्लाई की टोटल कटिंग फोर्स हमारा के भी निकल के आ जाएगा, राइट। द टूल लिफ्ट एंगल इज 40 डिग्री, डेल्टा इज गिवन, द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ड्राफ्ट इन किलो पास्कल इज, विड्थ टूल का गिवन है और कितना डेप्थ जो है ना अंदर घुसा हुआ है, वर्टिकल डेप्थ वो गिवन है। तो जो कटिंग एरिया होगी वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा विड्थ ऑफ द टूल इनटू डेप्थ। तो स्पेसिफिक और यूनिट ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट अपॉन दिस एरिया ऑफ कट, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना हम ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं, बी डी गिवन है ही, हमारा जो है ना स्पेसिफिक ड्राफ्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ड्राफ्ट कैलकुलेशन के लिए जो है ना हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, राइट। बिकॉज a tillage tool is moving with constant velocity, its acceleration will be 0, so net force acting on tillage tool must be 0, right। तो जितना इधर ड्राफ्ट लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा जितने सारे फोर्सेस लग रहा है उसके उधर के कंपोनेंट। तो D इज इक्वल टू, ये एंगल आपका जो ना डेल्टा हो गया, ये डेल्टा गिवन ही है, एंड ये ऐसे आपका एक्ट हो रहा है, D इज इक्वल टू म्यू प्राइम एन नॉट कॉस डेल्टा प्लस एन नॉट, ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा हो जाएगा, एन नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा, और ये ए बी। यहाँ से ड्राफ्ट कैलकुलेट कर लीजिए, हमने यहाँ पर किया है, और जो ना एरिया से डिवाइड कर दीजिए, जो कटिंग हो रही है सॉइल की उस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, स्पेसिफिक ड्राफ्ट और यूनिट ड्राफ्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ कल्टिवेटर अलॉन्ग विथ इट्स टाइन इज 40 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड की जो ना हाइट 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द कल्टिवेटर इज ऑपरेटेड एट 9 सेंटीमीटर डेप्थ एंड प्रोड्यूसेस ट्रायंगुलर फरो ऑफ 9 सेंटीमीटर विड्थ। तो 9 सेंटीमीटर विड्थ और डेप्थ जो ना 9 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगुलर फरो की हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ बेस टू हाइट, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। If the unit draft of the soil is du is given 3 Newton per centimeter square, we can find draft. Draft is equal to unit draft into area. Unit draft upon areas. So we can calculate draft. Draft is horizontal component of soil reaction, opposite direction of motion of the tool, right. So this cross section of standard will experience maximum bending moment. So we have to calculate value of maximum bending moment experienced by the standard. So
draft is acting 40 centimeter below this cross section, राइट। ये स्टैंडर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर मेन फ्रेम में लगा हुआ है। तो दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपीरियंसेस maximum bending moment dropped into this height, right? So calculate answer in proper unit. Question number 5. If the draft requirement of tillage tool at a forward speed of 1 meter per second is this, and a forward speed of this is this, then the draft requirement at this speed. Dear students, draft at speed s is equal to d naught plus ks square. So here d naught and k are constant. In order to calculate d naught and k, we need two equations, right? So first condition आपका क्या है, s1, this is ds1, speed 2, and this is draft requirement 2. So from these two information we can calculate the value of d naught and k. Then we can easily calculate draft requirement at this speed because d naught and k are known. वही किया हूं मैं, 1600 1 मीटर पर सेकेंड पे है, एक ये इक्वेशन बना। 1900 2 मीटर पर सेकेंड पर है, एक ये इक्वेशन बना। इन दोनों की हेल्प से डी नॉट एंड के का वैल्यू निकाला। डी नॉट एंड के का वैल्यू जब पता चल गया तो अनदर स्पीड पर हम ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द ट्रेवल स्पीड ऑफ टीलेज टूल इज इंक्रीज, द ड्राफ्ट विल इंक्रीज क्वाड्रेटिकली, राइट। ड्राफ्ट डी नॉट प्लस के, तो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट वेरीज ट्रेवल स्पीड क्वाड्रेटिकली। तो अगर जो है ना ट्रेवल स्पीड इंक्रीज करेगा तो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये हमारा जो है ना कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हमारा चलेगा मोडेबल प्लाउ, डिस्क प्लाउ एंड हैरो। तो वहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, सबको सिस्टमेटिकली कंसेप्चुअली लर्न करेंगे। नो रैटिफिकेशन, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लर्निंग से रिवीजन का जो है ना प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो दिस इज बेसिक फीचर ऑफ ट्रांसिशन, राइट। सो दैट वी क्रिएट 7 to 8 टॉप 10 रैंकर्स एवरी ईयर। ऐसे ही पढ़ना है। बेस्ट ऑफ दिस